Let's study the second poem of CBSE Class 9 English, Gift of Grace, honoring our vocation. What do you mean by vocation? Vocation is a special skill or the profession in which the man engages. A man is engaged. It may be in present scenario, people are engaging in any profession because we have some limitations of the opportunities, joblessness. Any people, anyone can engage in any profession, but at the same time, one fact is very much sure that one becomes successful in a particular skill or a profession only if he is born with a special talent or skill. आपके अंदर एक खास टैलेंट होगा, स्किल होगा, तभी एक खास प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हो पाते हैं. अदरवाइज जॉब की कमी के कारण हम किसी भी प्रोफेशन में कोई भी एक इंसान, कोई एक कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, कोई कुक का काम कर रहा है, कोई शू मेकर का, कोई बोटमैन का, कोई सेलर का काम कर रहा है. तो आप किसी भी प्रोफेशन में एंगेज हो, बट वी शुड admire our profession. The poet's message is, though this poem is anonymous. Anonymous means the name of the writer is not mentioned, not known. Though it is this, though this poem is an anonymous one, the poet, whosoever he may be, gives the message through this poem that we should be honored, we should feel privileged, we should feel blessed to have that particular skill or that particular profession with us. Secondly, in this poem, the poet has highlighted the dignity of labor. जनरली आपने बहुत सारे पोएम्स पढ़े हैं जिसमें बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े अचीवर्स, साइंटिस्ट्स, नेशनल हीरोज, बिगर पर्सनालिटीज के ऊपर, बिग लीडर्स ऑफ द ग्लोबल लीडर्स के बारे में पोएम्स आपने पढ़ा होगा. बट दिस वेरी पोएम इज डेडिकेटेड टू एवरी commonplace worker, a common professional, a boatman, a sailor, a shoemaker. Why? Why the poet mentions all those? Why is this poem written for the most commonplace professionals? In fact, the poet gives message through this poem that every profession is equally important. If people are working on rocket science, if people are working on space techniques and astronomy, and if people are working on science and technologies, scientific and technological development of the country, they are actually, because some people are standing at the foundation level. बड़े बड़े लोग, हमारे देश के बड़े बड़े नेता, लीडर्स, बड़े बड़े अचीवर्स, साइंटिस्ट सक्सेस को हासिल कर रहे हैं, देश को और आगे लेकर जा रहे हैं, उन्हें हम सभी देखते हैं. लेकिन कुछ लोग ग्राउंड लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे वर्क कर रहे हैं और वो सोसाइटी को एक फाउंडेशन पिलर की तरह सपोर्ट कर रहे हैं. उनके सपोर्ट के बिना सोसाइटी को आगे मूव करना मुश्किल है. दैट इज व्हाई दोस प्रोफेशनल्स, इवन द शू मेकर, even the carpenter, the electrician, the cook, they also need to be praised. They also need to be proud of themselves for their contribution to the success of this country, the development of this country. So let's read the poem literally. The poet कह रहा है in the very first line, keep your pen and paper ready in front of you and go on noting down the value points. I hear Bharat celebrating the varied vocation. Bharat celebrating. यहाँ भारत मतलब the people of भारत, people of भारत. ऐसे expressions को जहाँ पे the whole stands for unit, unit stands for whole, user stands for the instrument, instrument stands for the user. जैसे कि हम लोग बोलते हैं boots are drilling. यहाँ पे boots का मतलब हो गया आर्मी मैन. वेरी फ्यू हैंड्स आर वर्किंग. यहाँ पे हैंड्स मीन्स लेबरर्स, वर्कर्स. इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन G7, सपोज दैट. तो यहाँ पे इंडिया मीन्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द होल स्टैंड्स फॉर यूनिट. ठीक है ना. तो ऐसे ही होल स्टैंड्स फॉर यूनिट, यूजर स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट. ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग कहते हैं सिनेक्डॉकी.
Synecdoche, याद रखिएगा, Synecdoche and metonymy are almost similar. तो ये Synecdoche का एग्जाम्पल है. This is a kind of poetic device. अब कह रहा है कि varied vocations I hear. Varied vocation में alliteration का इस्तेमाल किया गया. Varied मतलब different kinds, various vocations को आज इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है. आज खुश है. कैसे खुश है कि those of craft person, each one celebrating their craft woven with colors and myriad goods. सारे क्राफ्ट्समैन मतलब बोलते हैं कारीगरों, कारीगरी जो कर रहे हैं, कोई लकड़ी के ऊपर, कोई दीवारों के ऊपर, किसी भी चीज में कोई डिजाइन बना रहे हैं, सुंदर गिफ्ट्स बना रहे हैं, कोई सुंदर सी टोकरी बना रहा है, कोई खिलौने बना रहे हैं, सबको क्राफ्ट्समैन कहते हैं. क्राफ्ट्समैन, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग इट एज अ मीन्स ऑफ लिविंग ओनली, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर प्रोफेशन एंड विथ कलर्स एंड मायरियड यूज. सभी क्राफ्टमैन, सारे क्राफ्टमैन, ये सारे क्राफ्टमैन क्या है ना, अपने अपने कलर लगा रहे हैं. कलर मीन्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ. लाइफ को, सोसाइटी को अपने अपने कलर दे रहे हैं. और कलर ही नहीं, मायरियड ह्यूज, ह्यूज मीन्स सेट. वैसे कलर तो मान लीजिए ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक जो भी हुआ, और सेट ह्यू क्या होता है? ह्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ सेट. वो ह्यू हो गया. ह्यू को भी कहीं कहीं कलर कहा गया. द आर्टिसंस विथ ल्यूट्स ईच हेलिंग वैरिड इमोशंस. आर्टिसंस मतलब कारीगर, विथ ल्यूट, यहाँ पे ल्यूट मतलब बीना वगैरह, सितार आपने देखा होगा. तो वो जो आर्टिसंस की जो इंस्ट्रूमेंट है उन्हें ल्यूट कहा गया. इंस्ट्रूमेंट को जैसे किसी मैसन राजमिस्त्री के वो करनी है, किसी वर्कर का हथौड़ी है वो हैमर, और मान के चलिए कि किसी पेंटर का ब्रश है, तो किसी कॉबलर की कैंची या सुई है, मोची की जो सुई है, सू में कर दिए. और या फिर कह सकते हैं कि एक बोटमैन का पतवार या सेल, ये सबको ल्यूट कहा गया. ल्यूट मीन्स क्या होता है? एक सितार, सितार, वीणा, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को ल्यूट कहा गया. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर. याद रखिएगा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर. और सभी एक सितार में कई सारी तारें होती है, और अलग अलग तारों को बजाकर एक धुन निकलता है. और ये सारे जो अलग अलग तारे हैं वो अलग अलग, दे स्टैंड फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट द आर्टिसंस आर यूजिंग. एंड हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स इकोइंग इन द स्ट्रीट. अब ये जो आर्टिसंस है, कारीगर जो है, ये जो राजमिस्त्री वगैरह जो है, वो देखिए, आप गलियों से निकलिए, शहर के, गांव के, अलग अलग तरह की मकानों में अलग अलग तरह की डिजाइन है. किसी की बालकनी ऐसी है, किसी का पोर्टिको ऐसा है, तो किसी का आगे के लॉन ऐसा है, सुंदर सी विंडोज है. ये सब क्या है? ये और उस कारीगर का धुन है, उस कारीगर का गाना है, उस सॉन्ग है दैट अपीयर्स इन द स्ट्रीट्स, गलियों में दिखते हैं. नेक्स्ट, द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, they create anything out of wood with mathematical precision. कारपेंटर्स को देख लीजिए, वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ, प्रेसिजन मतलब एक्यूरेसी, सटीकता के साथ किसी चीज का डिजाइन करते हैं. 1 इंच 1 सेंटीमीटर हमें आपको पता नहीं है, उनका 1 सेंटीमीटर का अगर एरर हो जाए तो किसी चीज की आकृति बिगड़ जाती है. और वो इलिटरेट भी होते हैं बहुत सारे, फिर भी आप देखिए अलग अलग मार्किंग से, अलग अलग सिंबल से वो मार्क करते हैं, और तरह तरह की लकड़ियों की तरह तरह की चीजें, फर्नीचर बना देते हैं. फिर आता है इलेक्ट्रीशियन हमिंग, दे गेट रेडी फॉर वर्क विथ work with cables and wires to brighten our lives. आप देखिए, एक इलेक्ट्रीशियन है, वो बड़ा खुश है, वो गुनगुना रहा है, वो अपने काम के प्रति बड़ा वफादार है, वो काम के प्रति बड़ा प्राउड फील कर रहा है, और वो सारा दिन केबल और वायर से काम करता है. यहाँ पे देखिए, वर्क को फिर रिपीट किया गया, वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स. केबल एंड वायर्स क्या है? डेड थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स, और लाइफलेस थिंग्स पर काम करके वो हमारे लाइफ को क्या कर रहा है? रोशन कर रहे हैं. एक बात और याद रखिएगा, वर्क विथ बीच में केबल एंड वायर्स, वर्क विथ केबल एंड वायर्स. अगर इस तरह से हम पढ़ें विदाउट एम्फेसिस तो ये एलिट्रेशन का एग्जांपल बनता है. एलिट्रेशन इज द वर्ड टू और मोर conjugated or stressed words or conjugative words that start with the same initial sound or later. यहाँ पे हो गया वर्क विथ केबल्स एंड वायर्स, ये एलिट्रेशन का एग्जांपल है. टू ब्राइटन आवर लाइफ, और मेंशन किया केबल एंड वायर जैसे डेड चीजों से वर्क करके, के साथ वर्क करके, दे आर ब्राइटनिंग आवर सोसाइटी. लाइफ को रोशन कर रहा है, सोसाइटी को रोशन कर रहा है. Then the boatman gathering their nets from the shore, selling and singing while at work, return to tell the tales of life at sea. ये बोटमैन, नाविक, मछुआरे
समुद्र में दूर 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 तक चले जाते हैं और मछलियां पकड़ने के लिए। और वो नाविक आज आपको सुना रहे हैं समुद्र की जिंदगी कैसी होती है, लाइफ कितना ट्रबलसम होता है, कितने चैलेंजेस होते हैं लाइफ कितने। अब आप एक चीज समझिए कि ये जो सारे लोग हैं इलेक्ट्रीशियंस है, वो इलेक्ट्रीशियन वर्क नहीं कर रहा। सपोज दैट एक साइंटिस्ट है, मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉमर है, मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है, उसके घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग सही नहीं है, घर में शॉर्ट सर्किट हो, क्या वो अपने ड्यूटी सही ढंग से कर पाएगा? Can a scientist work in his lab when there are some furniture related problem at home and time and again people are calling from home? If many people eat fish and seafood, right? They are habitually eating them. If they do not get proper food what they want, ये जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो वो क्या है, सी फूड खाते हैं, फिश खाते हैं। अगर वो उनको नहीं मिला, अलग अलग प्रोफेशंस में लोग engaged है। Suppose that hot shot, suppose that many of them are engaged in hot shot jobs। कोई बैंक में बड़े, कोई बैंक में व्हाइट कॉलर जॉब करता है, तो कोई पुलिस में टॉप ब्रास है, कोई किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे प्रेस्टिजियस पोस्ट पर काम कर रहा है। अब वो बोटमैन या सेलर का जो फिशरमैन का जो जॉब है, वो भी उस पुलिसमैन, उस टॉप ब्रास, उस व्हाइट कॉलर जॉब प्रोफेशनल को हेल्प कर रहा है, प्रोवाइडिंग द फूड ऑफ देयर चॉइस। तो इन दिस वे दे आर ऑल्सो कीपिंग behind the curtain, they are also giving support to the society and the people of the society to do their work, to do their contribution for the development. So in this way, they are also working on the foundation level. तो बोटमैन आकर बतला रहा है कि कितना सी के ऊपर कितने चैलेंजेस को फेस करते हैं वो, रफ वेदर्स को, टेक्निकल ग्लिचेस को, और तब वो फिश लेकर आते हैं। The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. अभी जूते बनाने वाले लोग देखिए अलग अलग तरह के डिजाइन दे रहे हैं अपने जूते को। कोई इसको पहनकर जॉगिंग करता है, कोई इसको पहनकर अपने प्रोफेशन में काम करता है, कोई रेलवे ड्राइवर जूते पहनकर ट्रेन चलाता है, कोई टीचर शूज पहनकर अपने स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग डिजाइन है। आप देख लीजिए उसमें भी कितनी कारीगरी है। अलग अलग पर्पजेस के लिए फुटबॉल प्लेयर के जूते अलग, जॉगिंग के लिए जूते अलग, कोई अगर हैंडीकैप्ड है तो उनके जूते अलग, अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग तरह के। वहां भी एक शू मेकर वर्क कर रहा है। शू मेकर आज तो सपोज दैट आज सोसाइटी में बहुत नए नए तरह के प्रोफेशंस आ गए, वर्क फ्रॉम होम, कंप्यूटर साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, एमबीए, ये बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए। बट व्हेन द सोसाइटी हैड स्टार्टेड, याद रखिएगा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि दे आर द फाउंडेशन पिलर, बिकॉज व्हेन द सोसाइटी हैड स्टार्टेड वर्किंग, they were the first professionals and they have brought the society up to this level to attain this level of success, attain this level of scientific, technical, financial, social and economic development. So they are the base or the foundation professionals. shoemaker भी काम कर रहा है सभी के लिए, सभी के लिए अलग अलग जूते। And thereafter the delicious singing of the cook or the rhythm of the designer, mason is celebrating what belongs to them and to none else. कुक भी काम कर रहा है अपने, सारा दिन वो लगे हुए अपने डिलीशियस, अब कह रहे हैं कि देखिए डिलीशियस सॉन्ग, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। ये जो कुक का गाना क्या है, हर प्रोफेशनल अपने इस सोशल सॉन्ग को, मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा, हर प्रोफेशनल उस हमारा सुर में, सामाजिक सुर में, सोशल रिदम में, सोशल सॉन्ग में अपने अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कोई ल्यूट बजा रहा है आर्टिस्ट, तो कोई हमिंग कर रहा है, गुनगुना रहा है, तो कोई यहाँ सिंगिंग कर रहे हैं। एक समाज के एकजुटता का मैसेज दिया गया। द पोएट हैज गिवन हियर द मैसेज ऑफ सोशल सॉलिडारिटी, सोशल इंटीग्रिटी, dignity of labor and the contribution of every individual, every professional for the success and development of the society. एक कुक गा रहा है, रिदम ऑफ डिजाइनर, डिजाइनर अपनी रिदम ऐड कर रहा है, मैसन अपनी रिदम ऐड कर रहा है, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम, जिसके पास जो है सभी अपने अपने कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। हर प्रोफेशनल, हर वोकेशनल, हर प्रोफेशनल अपनी अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ये लास्ट स्टांजा में वॉइस ऑफ देयर वोकेशन दैट कैन बी आल्सो एन एग्जांपल ऑफ alliteration. The poem ends with the same refrain. The refrain is a line or a group of lines that is repeatedly used in a poem for emphasis or for musical effect. The poet ends the poem with the same refrain. I hear Bharat celebrating the varied voices I hear. तरह तरह की वॉइसेस, तरह तरह की आवाज, तरह तरह के कंट्रीब्यूशन, हर किसी, हर प्रोफेशनल, हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल, एवरी प्रोफेशनल इज गिविंग देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. अभी विदिन 2 minutes आई विल मेंशन सम ऑफ द वैल्यू पॉइंट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा. पोएट ने हाईलाइट किया है इस पोएम में डिग्निटी ऑफ लेबर. दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी प्रोफेशनल टुवर्ड्स द सोशल डेवलपमेंट. तीसरी बात उन्होंने मेंशन किया, हर किसी को एडमिरेशन होना चाहिए, एडमिरेशन ऑफ द वर्क स्किल. आप अपने वर्क स्किल को एडमायर कीजिए, हर किसी को करना चाहिए. हम समझते हैं शू मेकर छोटा है, नहीं, everyone is equal in the society giving their contribution and every contribution is equal. ये पोएम फ्री वर्स में लिखा हुआ है. फ्री वर्स कहते हैं वैसे पोएम को जहां कोई राइमिंग नहीं होते हैं, राइम्स नहीं है यहाँ, इसीलिए हम इसे फ्री वर्स कहते हैं. फ्री वर्स या किसी किसी ने ब्लैंक वर्स या ओपन वर्स भी कहा है. और सेकंड थिंग, इसमें एक रिफ्रेन का इस्तेमाल हुआ है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग. दैट्स ऑल द वैल्यू पॉइंट्स and the questions related to this poem are given in a PDF and the link of the PDF is given in the comment box. Please follow. Thank you everyone.